Namaskar and thank you for coming on a Sunday. Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. In fact, I'd like to start by quoting Prime Minister's some words of Prime Minister's speech that day, because what I'm planning to say today is very much pegged to that aspect of his speech. And I quote, "As a nation today, we stand at a very crucial juncture." He spoke in Hindi, and a version of it in English has been translated. I'm using that. As a nation, we stand at a very crucial juncture. Such a big disaster is a signal for India. It has brought a message and an opportunity. Unquote. प्रधानमंत्री मोदी के ने जो He also used करते हुए कहा था कि इस वक्त देश the एक expression नाजुक crisis मोड़ पर खड़ा हुआ है, वही संदेश an आगे लेकर जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसी को अवसर में That तब्दील कर रहा again है ये leads फोकस to me सरकार। to refer to his expression that we need now to build an Atmanirbhar Bharat. So, laying the foundation for what I want to say today, a little again quote from the Prime Minister. Quote, "In order to prove the resolve of a self-reliant India, land, labor, liquidity and laws, all have been emphasized in this package." तो इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर पुरजोर तरीके से जोर दिया गया है। आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त पर ये 5वीं प्रेस वार्ता आप सुन रहे हैं लाइव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। And also looking at a self-reliant Bharat, an India which is going to be strong enough to meet the global challenges. But जो वैश्विक चुनौती हैं उनको पार करने के लिए भारत लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ India and build a Atmanirbhar India. So in the last 4 days of announcements, particularly the last 2 days, have had several reforms addressing the land, labor, liquidity and the laws. तो आखिरी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और खास तौर पर आखिरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो फोकस रहा वो जमीन रहा, वो मजदूर रहा, वो कैश रहा, वो कानून रहा। PM also had said, "जान है तो जहां है." Soon after announcing the lockdown, we had come with the PM Garib Kalyan package in order to immediately reach out to those who wanted food, who need food. We were not doing a favor to them, it was our duty. So we quickly went in to give तो लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद भारत में the requirement of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को लागू किया गया ताकि जो जरूरतमंद है हमारे देश में उन तक तुरंत जो जरूरत की सुविधाएं हैं वो मुहैया की जा सके। Pulses were also given for 3 months in advance. And here, I would want to say a word in appreciation of the efforts that the Food Corporation of India, NAFED and the state governments all together put in facing the logistics challenge that this posed, upfront giving all the grains and the pulses as promised to everybody who needed it as per the cards. तो खाद्य आपूर्ति की जो चुनौती थी उसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, नेफेड और जो राज्य सरकारें हैं उनका जो साझा प्रयास रहा उससे खाद्य आपूर्ति में काफी जो भी चुनौतियां थी उनको पार करने में काफी सहायता मिली है। Issue because huge quantities had to go, but notwithstanding the lockdown, I again want to say the FCI, the NAFED and the state governments all came into the picture, made sure that the quantity of grains were lifted and gave them the workers who couldn't travel back, who actually could procure the grains from their cards.
But there were also workers who couldn't go back to their homes, who stayed in the camps, because PM had very clearly said early, in one of his early messages, stay where you are. And state governments ensured that they prepared meal, NGOs participated in this, charitable organizations also made sure that these workers who are not able to go back home are attended to. Many employers also kept their workers in their own premises and gave them food and place to be. सबकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को अपने कैंपस में ही रखा, वहां उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया। इस तरीके से भारत मिलकर के आगे बढ़ रहा है। Was able to do direct benefit transfer of cash for the various categories. I just want to quote some of these numbers now before I begin today's issue, because of the size of what is shown in these figures. The number of people to whom directly to their accounts money could reach because technology, direct benefit transfer technology, डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या को सीधा फायदा पहुंचा, उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचा के भारत सरकार ने। PM Kisan beneficiaries as of 16th May, I'm strictly talking about the announcements and their impact. One-time transfer of 2,000 crores, 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers. And that amount is about 8 करोड़ 19 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा मिला। 16 मई तक ये वो लोग हैं जिनके खाते में 2,000 रुपए पहुंचाए गए हैं। First installment 2.812 crores of people, 1,405 crores of rupees in the first installment, again 1,402 in the second installment. The target was to give away 3,000 crores, and that's almost nearly achieved. तो गरीबों तक लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश और टेक्नोलॉजी के जरिए डायरेक्ट खाते में जो पैसा भेजा गया, उसकी पहली किस्त थी 1405 करोड़ की। दूसरी किस्त 1402 करोड़ की कोशिश थी कि 3,000 करोड़ की सहायता पहुंचाई जाए। तकरीबन 2,800 करोड़ की सहायता पहुंचाई जा चुकी है। 20 crore people's accounts, and that amounts to 10,025 crores of rupees. Building and construction workers received their financial support amounting to 3,950.35 crores, and their number, the building and construction workers number, is 2.20 crores. Imagine each one of these numbers and their implication in terms of size. And all of them received the money directly into their accounts. जिनको फायदा मिला उसमें 2 करोड़ 20 लाख वो मजदूर भी हैं जो डेली वेजेस का काम करते हैं, उन तक भी सहायता पहुंचाई गई है। 6.81 Ujjwala Yojana cylinders have reached the beneficiaries, and they were free cylinders because we had promised up to 3 cylinders in those 3 months. 6 करोड़ 81 लाख उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी रहे हैं। Members have benefited by the online withdrawal of non-refundable advance, and that amounts to 3,660 crores. So I can further go with the numbers, but just to highlight what the technology-driven DBT has given us at a time of emergency, a pandemic. And that is something which I want to draw your attention to. We immediately responded by giving food grains, cooking gas, cash. सबसे बेहतर बात है कि ऐसी वैश्विक महामारी के बीच में डीबीटी के द्वारा लोगों तक सीधा पैसा पहुंचाया गया।
रसोई गैस पहुंचाई गई और राशन वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई सरकार की तरफ से। When the lockdown got extended, free grains and dal was also given for a further 2 months more. Free grains and dal was also given for 2 months more. And when it was really possible to have the workers go from the camps that they were in to their respective villages, trains were allowed, and state governments were requested to request for trains from the various stations that they wanted, so that once they brought the workers into that area, to that station, from that station they could be taken to their respective states. तो प्रवासी मजदूरों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया और जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी इसके तहत समन्वय स्थापित लगातार किया गया कि उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास होते रहने चाहिए। The rest is 15% was with the state governments, 85% was borne by the central government. During the travel in the train, food was also given to the workers. So why am I प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक, गृह जिलों तक पहुंचाना, बल्कि जो उनकी जरूरतें हैं उनका भी ट्रेन के अंदर, चाहे वो खाने की व्यवस्था और तमाम व्यवस्था, उनका भी पूरा ख्याल रखा गया। Given the first priority and attention, we ensured that this was extended. But now it is important also to provide every support when in a changed post-COVID era, livelihoods will also have to come into their fullest play. So when the lockdown gets lifted and when businesses, after facing severe stressful conditions of business, will be coming back to say, can I start my work back again? Can I get my workers back? Or do I have the money to buy the raw materials? Is it enough for me to pay the wages which is due? All kinds of considerations are going to come up, and many of them may also wonder if they were reaching a stage of bankruptcy. So all this has been kept in mind when we are addressing the issues of land, labor, liquidity and the laws. तो इन चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार का फोकस रहा है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी व्यवस्थाएं की गई। Our attempt is to make sure that, like the way we gave in PM Garib Kalyan, we attend to John, but also make sure that environment is all right now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes and everything else. तो जीने के साथ साथ जीवन यापन पर भी सरकार का पूरा जोर है। जान है तो जहान है, और चाहे जनधन योजना के जरिए जरूरतों को पूरा करना हो, लोगों तक सुविधाओं को पूरा करना हो, या फिर गरीब कल्याण योजना के तहत जन जन तक पहुंचने की बात हो, सरकार की इन कारगर योजनाओं के तहत हर किसी का ख्याल रख रही है। तो जनधन के तहत 20 करोड़ लोगों के खातों में पैसों को भेजना, During the COVID period, education related 20 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाना, और उज्ज्वला योजना के तहत भी 6 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर्स का वितरण हुआ है। Fourth is on decriminalization of the Companies Act. और कंपनीज एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन उसका किया गया, जिससे कि कंपनी मालिकों को काफी फायदा पहुंचा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रिलेटेड मैटर्स एंड द पॉलिसी देयरऑफ। सेवेंथ, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिसोर्सेज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का आखिरी ब्रेकअप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने रख रही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए
जो रचनात्मक और उपयोगी हों। वी हैव टेकन स्टेप्स विच आर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। वी हैव वर्क विद अ टारगेटेड अप्रोच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं, इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर एमएसपी खरीद पर देखा जाए तो 74,300 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था। और जो 4.25 लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी 3 महीने का मॉरेटोरियम अलग से दिया गया। 86,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को पिछले 2 महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए। और राज्यों को भी पैसा हजारों करोड़ रुपये उपलब्ध कराया ताकि खरीद हो सके। ज्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, और इसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे। So before I start on today's reforms and enabling measures, I would like to show what we have done in the last 2 months, particularly as regards containment of coronavirus.
कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए, काबू में करने के लिए पिछले 2 महीनों में क्या कोशिशें की गई केंद्र सरकार की तरफ से, उसका ब्यौरा देती हुई वित्त मंत्री। And also make sure that school-going children do have some technological support in conducting their classes, in having their classes conducted. So if we can start off with the slides. The health-related steps that have been taken are shown in this slide. 15,000 crores was declared by the Prime Minister as released, and from that 4,113 crores have been released to the states. Essential items of 3,750 crores were bought. Testing labs and kits were also brought in. Insurance cover, which is the most important thing there, insurance cover of 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced. Also making sure that गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख का 50,000 का बीमा किया गया तमाम लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो कि कोरोना के युद्ध में मैदान में डटे हुए अपना काम कर रहे थे। Taken up through virtual learning modules. Then protection of health care workers required an amendment in the Epidemic Diseases Act, which is a fairly an old act, but amendments have been made. And one thing which the Prime Minister mentioned during his speech, which is worth recollecting, that this challenge gave us an opportunity to prove to the world that we can ramp up production of protection equipments. Today, we have more than 300 domestic manufacturers of PPE, and early when this whole epidemic came into existence and all of us really got ourselves to take preventive steps, there were not even one producer of PPE. Already we have supplied about 51 तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट फुट पर हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ संशोधन जो हैं सरकार की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 300 से ज्यादा hydroxychloroquine tablets. जो पीपीई किट बनाने के लिए So that is as regards the health कंपनीज हैं, वो लगातार सक्रिय तौर पर अपना काम कर रही हैं। Ease of doing business, quite a few things have happened, but because I'm going to elaborate it as part of my package, I will not attend to it now. You can go to the next slide. This also is something which we've been doing during the COVID time, just to make sure that activities are initiated as regards ease of doing business. I'll again come back to it when I'm getting in to talk about the package. The next slide. This is important because during the COVID, तो टेस्टिंग किट के लिए लैब्स के लिए 550 करोड़ दिए गए, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी बेहतर बीमे का प्रावधान है। Or because we couldn't attend to office, or because my necessary staff राज्यों को भी सरकार की तरफ से 4,113 करोड़ रुपए दिए गए। Will action be taken against us? So today we have been joined by Secretary Corporate Affairs also. Timely action was taken to reduce the compliance burden under various provisions of the Companies Act. As well as that, companies could conduct, this is a very important technological advantage which we have used, like the DBT. We've said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences. And the latest order pertains कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग के होते हुए भी काम ना रुके और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनीज के सीनियर ऑफिशियल्स, एजीएम्स, एवीपीज आपस में प्रेस वीडियो कॉल के जरिए कंपनी का काम आगे बढ़ा रहे हैं। Because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken in such a context. Other than that, of course, 44% recovery has been achieved during that time since 2016 inception of IBC. कोरोना के बाद की भी सरकार की पूरी तैयारी है। Later, but I think during बिजनेस के लिए तमाम चुनौतियां होंगी लॉकडाउन खुलने के बाद, उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है
और बिजनेस के लिए पैसों वर्कर दोनों की चूंकि जरूरत पड़ने वाली, लिहाजा सरकार उस हर क्षेत्र में कारगर कदम उठा रही है ताकि जरूरतमंदों तक सारी जरूरत पहुंच पाए। और लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 2016 से अभी तक 47% रिकवरी की भी जा चुकी है और उन कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश भी की गई है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम है। 3 channels are already earmarked for school education. Now another 12 channels are to be added to this. I am sure in schools in the rural areas also this will be of great help, where schools can bring in बच्चों की शिक्षा ना रुके, इसके लिए जो टीवी चैनल्स को, जो सरकारी टीवी चैनल्स है, उन पर रोज प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 12 और चैनल ऐसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि जो स्थानीय भाषा में जहां पढ़ाई होती है वो बच्चे भी आसानी से अपने कोर्स को पूरा कर सकें। Active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on, and these channels bring in experts from home through Skype. Also, they have tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content. के साथ भी and this, of course, enhances the learning interest की गई है। of children. So कोलैबोरेशन किया गया है कि वहां पर भी फ्री चैनल्स दिखाए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो पाए, छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो पाए। And Swayam Prabha channels therefore will be telecasting education related contents. 200 new textbooks are being added to e-Pathshala. तो ई-पाठशाला के तहत 200 नई किताबों को और जोड़ा गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शिक्षा में कोई कदम माननीय प्रधानमंत्री रोड़ा ना आए, कोई दिक्कत ना आने पाए, उसके लिए सरकार के सारे प्रयास जारी हैं। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए, आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं, लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नजदीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो प्रोविजन है उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी
डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है उसको भी सीएसआर में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और डीआरटी में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसी उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। We move to the first of the 7. The budget estimate for MNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in MNREGA. So, government will now allocate an additional 40,000 crores. This way, we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given. प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया है और अपने गांव वापस पहुंच चुके हैं, तो वहां रोजगार उनको उपलब्ध हो पाए, इसके लिए मनरेगा कारगर योजना है जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। We now go to the second, which is ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about
wellness centers so that they स्वास्थ्य can विभाग be के लिए in 15,000 tier 2 करोड़ and का tier ऐलान, 3 हेल्थ वर्कर्स के लिए cities. 50 लाख की बीमा योजना And और हेल्थ particularly के giving क्षेत्र में focus क्या-क्या on प्रावधान यहाँ पर रहे aspirational और क्या-क्या We बदलाव also सरकार की तरफ से spoke एहतियाती about the कदमों के तौर पर viability उठाए gap गए। funding संजीवनी for और the आरोग्य social सेतु ऐप का infrastructure एक only बड़ा फायदा yesterday. पहुंचा, ये कहना था So we अनुराग will be ठाकुर ramping का। up all the wellness महामारी centers and एक्ट health को भी बदला गया infrastructure. हेल्थ वर्कर्स के लिए। All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. All districts. Then lab, in Delhi we have a lot of path labs moving around and which facilitates people's lives. Lab networks in rural areas are not adequate. So public health labs will be set up at all block levels, not just in ब्लॉक districts, लेवल पर but जो block levels पब्लिक हेल्थ we लैब्स will have हैं, public health क्योंकि labs. अगर हम रूरल एरियाज की बात करें I वहाँ पर recall लैब्स इतने Prime Minister did say मौजूद नहीं है, this पैंडेमिक को pandemic is देखते a हुए challenge. लिहाजा This or ये कदम any भी सरकार ने pandemic, उठाया। if at all it poses a challenge, we need to be ready, Atmanirbhar, in hospitals, at the block and at the district levels. So there is a lot of emphasis being now ब्लॉक और given डिस्ट्रिक्ट for लेवल पर setting up भारत सरकार hospitals ने and also labs, diagnostic labs, and लैब्स की बात testing करें, labs, अस्पतालों की both बात with करें, private and public उनके लिए बड़े कदम उठाए। funded opportunities. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो, उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो जमीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीजेज के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें। और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। Along with health, as my second point, Manrega was the first, now this one is the second, health and education. The next slide shows you what efforts have been made as a result of learning from the pandemic experience. PM eVidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class, from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class. One class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio, and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use